Hello students, welcome back to our social science class. As we discuss question answer of economics chapter first, the story of village Palampur. In previous class, we already studied and discussed about this question. Define production is an activity that involves making of goods and services that a person needs. Next question was the define yield. Yield means crop produced on a given piece of land during a single season. Human capital refer to knowledge and enterprise. Next question was diagram on organization of production. Next question was there, name what are the cropping pattern in India. Definition of green revolution. Distinguish between kharif and rabi season. Next question is we discuss traditional and modern farming, and today we will discuss this question, what is difference between multiple cropping. Cropping spelling is a wrong, CROPPING, and modern farming method. More than one crop is given on the same land, piece of land in a 1 year. Okay. सिंपल कोई भी पीस ऑफ लैंड है, स्मॉल पीस ऑफ लैंड, एनी पीस ऑफ लैंड, देयर वी गेट more than one crop in a 1 year is known as multiple cropping. Next point is it is a natural way to increase the production. Natural way से production क्या किया जाता है, increase किया जाता है, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम हर सीज़न में कोई ना कोई क्रॉप को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं. Next point is it is generally practiced by small farmer and poor farmers as it does not require costly inputs. सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि जो इंडिया है, मोस्ट ऑफ जो सिटीज़न है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है. तो अगर वो फुल ईयर में सिर्फ सिंगल क्रॉप ही ग्रो करेंगे तो उनके जो अर्निंग है वो क्या हो जाएंगी, मिनिमम हो जाएंगी. तो उनके अर्निंग के लिए और उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग को फॉलो किया जाता है. मॉडर्न क्रॉपिंग तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. इट इज़ डन बाय यूजिंग केमिकल फर्टिलाइज़र, हाई वैरायटी सीड्स, modern machines, etc. It is scientific way to increase the production. The type of farming is done by rich and big farmer. जो मॉडर्न फार्मिंग है वो रिच और बिग फार्मर्स के थ्रू किया जाता है, क्योंकि क्या है कि जो थ्रेशर है, जो कंबाइन है, ट्रैक्टर है, उनको क्या है एक स्मॉल फार्मर परचेस नहीं कर सकता, इसलिए क्या कहा गया, ये रिच और बिग फार्मर ही इसको फॉलो करते हैं. Next question is what are the four requirements for the production of good and services. Okay, if we want to produce any goods and services, which are the four requirement we need. First requirement is land and other natural resources such as water, forest and minerals. Here is include primary economic activities which is directly related to the land. Next is the second requirement is labor, people who will do the work. Some production activities require highly educated worker to perform the necessary task, and other activities requires people who can do manual work. Okay, टू टाइप्स की लेबर का यूज़ किया जाता है. वन जो अपनी नॉलेज का यूज़ करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ का यूज़ करते हैं. सेकंड जो मैनुअल हैंड वर्क करते हैं किसी भी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए. थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल में टूल्स, मशीन्स and buildings can be used in production over many years is called fixed capital. Raw material and money is hand are called working capital. We need last one is knowledge and enterprise to be able to put together land labor and physical labor and produced an output. Okay, next question is what is working capital, why is required by farmer using modern farming. What is working capital, here we discuss.
Raw material and money. Raw material and money in hand which are used for production are called working capital. ओके, या प्रीवियस क्वेश्चन में भी स्टडी कर चुके हो. वर्किंग कैपिटल में हम की क्या क्या इंक्लूड करते हैं, व्हाट वी विल इंक्लूड इन वर्किंग कैपिटल. रॉ मटेरियल एंड मनी. It is required by farmer to purchase हाई यील्ड वैरायटी सीड्स. मनी नहीं है तो हम इनको परचेज नहीं कर सकते. फर्टिलाइज़र और मॉडर्न मशीन्स. ओके, मनी है तभी तो हम कोई भी जो हमारी हेल्प करेंगे प्रोड्यूस करने में उनको परचेज कर पाएंगे. व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड. अगर आपको कोई पीस ऑफ लैंड दिया हुआ है, आपको वहाँ का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो आप क्या क्या फॉलो करोगे. Different way to increase production some piece of land. First, use of multiple cropping. मल्टीपल क्रॉपिंग को ग्रो करोगे कि आप हर सीज़न में क्या करो, क्रॉप को ग्रो कर रहे हो, जिससे आपको कि जो टाइम पीरियड है 4 मंथ्स का, उसमें आपको क्या मिल रही, अर्निंग मिल रही है. ओके. नेक्स्ट है यूज़ ऑफ हाई यील्ड वेराइटीज़. अच्छी क्वालिटीज़ के बेस्ट क्वालिटीज़ के आप सीड्स यूज़ कर रहे हो, जिससे जो प्रोडक्शन होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर अमाउंट में होगा. नेक्स्ट इज़ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स. अब क्या है कि जो फर्टिलाइज़र है और जो पेस्टिसाइड्स हैं उनकी भी इम्पोर्टेंस है. अगर लैंड हमारी फर्टिलाइट नहीं होगी तो हम वहाँ पे प्रोडक्शन अच्छे से नहीं कर पाएंगे. ट्यूबवेल इरिगेशन. अब वाटर भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है एग्रीकल्चर का. बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ हेल्प टू इंक्रीज द यील्ड और प्रोडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू मीडियम एंड लार्ज फार्मर ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग. हाउ इज़ इट. अब जो मीडियम लार्ज फार्मर हैं वो उनके पास कैपिटल हमने स्टडी किया था वीडियो में. कैपिटल मीन्स मनी. जो स्मॉल फार्मर है वो क्या करते हैं, मनी को बोरो करते हैं फ्रॉम द लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स. एंड हाउ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर गेट मनी. फर्स्ट पॉइंट इज मीडियम एंड लार्ज फार्मर सेल देयर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट एंड अर्न गुड मनी. ओके, जो भी सरप्लस अमाउंट में ग्रेन्स होते हैं उनको क्या करते हैं, वो मार्केट में सेल कर देते हैं. सेकेंड इज सो दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड फॉर फार्मिंग. नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड स्मॉल फार्मर हैड टू बोरो मनी टू अरेंज कैपिटल. अब क्या है कि फार्मर ने उनसे क्या किया होता है, मनी को बोरो किया होता है और टाइम टू टाइम उनके क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं. दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर मनी लैंडर्स एंड ट्रेडर्स. द रोल ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरी हाई एट सच लोन्स. ओके, जो लोन्स पे जो इंटरेस्ट होता है वो हाई होता है, वहाँ से भी वो मनी को लेते हैं. थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था वीडियो में, वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वो है सेविंग. जो लार्ज फार्मर है, बिग फार्मर की क्या होती है, अपनी सेविंग होती है, वहाँ से भी वो कैपिटल को अरेंज कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिक्स्ड कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल रिलेटेड टू द मशीन्स. ओके, fixed capital it is input which can be used for production over many years like tools and machines. अब है physical capital. It includes tools, machines, raw material and money in hand. It is sum of fixed and working capital. अब यहाँ पे working capital को इन्होंने physical capital में include किया, जिसमें आपके machines भी हैं, raw material भी है, money भी है. यहाँ पे तीनों जो फिक्स्ड कैपिटल है और वर्किंग कैपिटल, दोनों को क्या किया हुआ है, मिक्स किया हुआ है. नेक्स्ट इज हेक्टेयर. हेक्टेयर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इन इस हेक्टेयर. 1 hectare इज इक्वल द एरिया ऑफ स्क्वायर विच वन साइड मेजरिंग 100 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the limitation of green revolution. The limitation of green revolution are the high yield variety seeds need a huge quantity of water and chemical fertilizer. ओके, वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है, फर्टिलाइज़र की भी रिक्वायरमेंट होती है हाई yield variety seeds में. सेकेंड इज continuous of ground water irrigation has reduced the water level below the ground. ओके,
एक्सेस अमाउंट में हम क्या कर रहे हैं, वाटर का यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम जो ग्राउंड लेवल पे वाटर है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज या रिड्यूस होता जा रहा है। थर्ड पॉइंट इज हायर आउटपुट इज पॉसिबल इफ़ वी यूज़ मॉडर्न इनपुट्स ऑफ एग्रीकल्चर। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम जो हायर आउटपुट है वो तभी पॉसिबल है जब हम मॉडर्न इनपुट्स मीन्स आप ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे हो, जो भी मशीन्स एग्रीकल्चर में यूज़ की जाती है, थ्रेशर कंबाइन, उनका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, हायर आउटपुट गेन कर सकते हो। इन मैनी रीजन्स ग्रीन रेवोल्यूशन लीड टू लूज ऑफ फर्टिलिटी ड्यू टू अवेयर ओवर यूज़ overuse VIO overuse of chemical fertilizer and pesticides। ओके, लैंड की फर्टिलिटी भी क्या होती जा रही है, टाइम टू टाइम डिक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, what is the green revolution? When we use high yield variety seeds, pesticides, chemicals, irrigation facilities to increase the production of crops, and what factor will be responsible? First is capital available by banks on cheap इंटरेस्ट रेट। ओके, अब यहाँ पर आपको लार्ज फार्मर या बिग फार्मर से मनी को बोरो करने की ज़रूरत नहीं है। यू हेयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू बोरो मनी फ्रॉम द large farmer and big farmer. Their government gives us facility, we can go to the bank and take capital for our crop on the cheapest interest. Next is a high yield variety seeds are available for the farmers। अब फार्मर्स के लिए भी बहुत सारी ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ पे उनको अच्छी क्वालिटीज़ के सीड मिलते हैं, लेकिन एक प्रॉपर अमाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड वर गिवन टू द फार्मर। टाइम टू टाइम क्या दिया जाता है इनको, फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स दिए जाते हैं। लास्ट वन इज इरिगेशन फैसिलिटीज वर प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैव द फार्मर इन पालमपुर। इलेक्ट्रिसिटी ने क्या हेल्प किया है विलेज पालमपुर में। It helped the farmer to run tubewells in the fields and is also used for carrying various type of small business। ओके, स्मॉल बिजनेस को कैरी करने में भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि जो मशीन्स होती है उनके लिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी। अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर अमाउंट में सप्लाई हो रही है तो जो प्रोडक्शन होगा उससे वो इंक्रीज़ होगा, जो वहाँ के लेबर हैं उनकी सैलरी टाइम पे मिलेगी। Second is it also helps the run tubewell to irrigate large area of land in a more effective manner than the पर्शियन व्हील। पर्शियन व्हील से में क्या लगता है, मैक्सिमम टाइम लगता है, लेकिन वाटर क्या होता है, कम गेन होता है, मिनिमम अमाउंट में गेन होता है। लेकिन ट्यूबवेल से क्या होता है, हम स्विच ऑन करके और ह्यूज अमाउंट में वाटर को यूज़ करते हैं फॉर आवर इरीगेशन। This is the old topic of economics chapter first. Total questions are 17. Okay. Thank you and have a nice day. God bless you.